અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાલી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહારી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે નિહારી અમે કેવા ભાગ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાલી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની છાવી વાળી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાલી આગમ સ્વરૂપ થાઉં એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ થાઓ માર્ગ મુક્તિનો છે સત્તા ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે છત્રમાં સમાવો આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આંગણી વચકાશ વાંધાની વજકાશ આજ્ઞાન માન્ય થાઉં એને દીવડાવી આજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીવડાવી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાલી જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। And श्रेया इधर है? हाँ, ओके ओके श्रेया तो 9 कलमों बोलो। sir Monica, can you do the one time video? हाँ श्रेया દાદા હા एक ज मिनट વહી सब नौ कलम नहीं श्रेया 9 कलम बोलो ना। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનમોલાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો देखा હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય કે દુભા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અંગે ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ
મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. પણ નિધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ આગળના પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ, યાદતા સંબંધી દોષો ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લિપ્ત બનવું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાલો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. Very good. Shreya. Asmugaji, 3 mantra, please. Okay. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Namo Vitragay. નમો Vitragay. Namo Arihantanam. નમો અરિહંતાણમ. Namo Siddhanam. નમો સિદ્ધાણમ. Namo Ayariyanam. નમો આયર્યાણ. Namo Vajjayanam. નમો વસાયાનમ. Namo Loe Sauva Sahunam. નમો લોવે સવસ્નાનમ. Eso Panchan Mukkaro. એસો પંચનમ. Sauva Pavakpanasano. સવ પાવકનાસનો. Manglanam cha Sauvesim. મંગલાનમ ચ સૌવેસ્મિં. Padmam Havai Mangalam. પરમં હવે મંગલમ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namah Shivaya. ઓમ નમઃ શિવાય. Jai Satchidanand. જય Jai સચ્ચિદાનંદ. Satchidanand. Okay, Shreya. भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठा और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Monica. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप परम कृपा करें। जय सच्चिदानंद। Daksh. हे दादा भगवान, Hey Dada Bhagwan. Bhagwan.
हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर है भी है कच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके श्रेया, श्रेया 2 दिन से किधर गुम हो गई थी? मैं फ्राइडे को मैं बाहर गई थी और मंडे को फिर मुझको पढ़ाई करने का था वो टाइम। ओके, तो आर यू हैप्पी? स्टडी में कैसे चलता है और मम्मी को टेंशन दिया कि नहीं? हाँ, हाँ मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं स्टडी टर्म टू फाइनल एग्जाम का रिवीजन सब सब्जेक्ट्स का अच्छा चल रहा है। मैंने मम्मी को टेंशन नहीं दिया सर। 4 दिन कैसे खाने में सब खा गया? हम्म, हंसते हंसते खाया? हाँ, वेरी गुड। स्टडी में कितना रिवीजन आ गया परसेंटेज वाइज? परसेंटेज वाइज वो मैंने मुझको अभी सोशल का 80% जितना हो गया है। सिर्फ इंग्लिश का बाकी है। हमने तो फिर थोड़ा हो गया है सब सब्जेक्ट्स नो का। नो नो, ओवरऑल ओवर कितना? आर्ट कितना आपका? 8 सब्जेक्ट है? कितना सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश हार्ड सब्जेक्ट है। टोटल कितना सब्जेक्ट है? 7। तो 7 में से परसेंटेज वाइज रिवीजन कितना आ गया? 60% जितना हो गया है। ओके वेरी गुड। और एग्जाम कब है? एग्जाम 29 मार्च तक। ओ मार्च को? अभी तो एग्जैक्टली 1 मंथ बाकी है। ओके दक्ष, जय सच्चिदानंद। आज के दिन में मैं हैप्पी हूँ, मैंने मम्मी को टेंशन नहीं दिया था और जो भी टेबल पे आया था वो खा लिया था। ओके कल किधर था आप? दक्ष कल किधर था आप? दादा कल वो हम बाहर गया था। ओके दरिया, जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने में चिक चिक नहीं की, बट मम्मी के साथ थोड़ी मस्ती की थी खाने के समय। जब मम्मी पूछ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा पनीर का साग चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो उस समय, और आज मैंने स्टडीज भी की थी और आज मैं हैप्पी थी। ओके तो खिट किनवा खा लिया? क्या बनाया था मम्मी ने? मम्मी ने मालपुआ और खट्टा की सब्जी और रोटी। और आपको सब ये फेवरेट है कि हमने खा लिया? नहीं, मुझे पसंद है वो हाँ साग और तो खाएगा ही मीठा। नहीं। तो खाएगा ही हाँ। नहीं। ये सुनीता है, सुनीता, सुनीता किधर है सुनीता? ओके अब दादा, मम्मी दुकान पर ऐसी। आयो मालूम है, वो उसके साथ वो है ना। खुशी है। हाँ कुछ ओके इसको। ओके तो प्रेयर कर दे खाने पहले। 3 दफा करते हैं प्रेयर मोनिका। आज मैंने 3 बार की थी प्रेयर। वेरी गुड श्रेया, 4 दिन से 5 दिन से? आज मैंने की थी प्रयोग। आज नहीं, 4-5 दिवस तो नहीं आई है आप? 5 दिन में से मैंने 3 बार की थी, दूसरे 2 नहीं किया। क्यों, आपको पॉइजन खाने का अच्छा लगता है? नहीं। बीमार होने का अच्छा लगता है?
तो प्रेयर क्यों नहीं करते? दिन में 3 दफा तो खाते, 4 दफा भी कभी खाते हैं। ओके, पॉइजन खाने का, बीमार होने का था कि उसमें क्या केशव दादा ने बोला कि प्रेयर करेगा तो अमृत होगा, प्रेयर नहीं करेगा तो पॉइजन होगा इन लोग को। ओके, मोनिका इज ओके। दाक्ष, आपने प्रेयर किया था आज? हाँ, मैंने प्रेयर कर दी थी। ओके, एक बार, आज मैंने 2 बार ही प्रेयर करी थी। क्यों? तो तीसरी दफा पॉइजन खाया? हाँ। अच्छा लगता है पॉइजन ना? नहीं। तो बीमार होएंगे बाद में। ओके, मोनिका हाँ। बोला क्विकली हसमुख काका को बताओ कौन सा प्रेयर हम लोग हैंडल किया। हाँ, पहले हम हे दादा भगवान, आप आकर खाना ग्रहण कीजिए। हे सर्वे देवी देवताओं, आप आकर खाना ग्रहण कीजिए। और बाद में आहार करे छे, હું નિર્હારી માત્ર તેને જાણું છું. और हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસિક ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. और आहार आहार ग्रहण करने वाले के शुद्धात्मा को नमस्कार। और आहार बनाने वाले को शुद्धात्मा को नमस्कार। और बाद में त्रिमंत्र। नो, दूसरा बाकी रह गया ना, और ग्रहण वाला बाद में क्या है? आहार बनाने वाले। हाँ, नो 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 नो, आहार का भगवान को नमस्कार करने का, आहार का। रक्षक देवी देवताओं को नमस्कार करती हूँ। हाँ, तो भूल गया आप। और बाद में 3 मंथ। वेरी एक्सलेंट, एक्सलेंट जॉब। ओके बच्चे लोग, दिस इज योर स्टैंडर्ड करने का। ओके, हाँ, तो ये एक दूसरा इंट्रोड्यूस करने का 2 मिनट। हसमुख काका उन लोगों को बात करो कि प्रेयर का कितना इम्पोर्टेंस है, बाद में एक दूसरा टॉपिक ऐड करने का है। हसमुख काका, हम्म प्रेयर का इम्पोर्टेंस। हम्म अच्छा। अमृत, अमृत और मुझे जहर। हाँ, तो कि हम लोग को प्रेयर क्यों करने की है, पहली बात तो कि प्रेयर करने से केशवानंद जी ने बताया ना कि जो जहर हो जाता है, जहर होता है, वो भी अमृत बन के आ जाता है हमारे अंदर। प्रेयर में इतनी सारी शक्ति भरी पड़ी हुई है, क्योंकि प्रेयर एक हमारी भावना है। क्या है? हमारी भावना है। और वो हम ऐसे ही खाना खाने या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके अंदर हमारी भावना जुड़ी हुई नहीं रहती। लेकिन अगर हम प्रेयर करके करेंगे तो कल जैसे केशवानंद ने बताया है आपको कि प्रेयर करने से हमारा भाव अंदर जुड़ जाता है। और भाव जुड़ने से क्या होता है, तो कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और नेगेटिव एनर्जी कभी आती नहीं है। और अगर प्रेयर बगैर अगर हम करते हैं तो उसका नेगेटिव एनर्जी होगी तो भी हमारे अंदर सब चली आएगी। इसके लिए प्रेयर का बहुत ही सारा इम्पोर्टेंस सभी धर्मों के अंदर, या सभी दादा भगवान ने भी बताया। दादा भगवान भी पूरे दिन भर कुछ भी कार्य करते थे तो उसके पहले उनकी निरंतर ये विधियां चलती रहती थी। प्रेयर, अपने इंग्लिश में बोले तो प्रेयर, उनकी 24 घंटों उनकी हर एक चीज के अंदर विधि करते रहते थे। तो हमको भी ये धीरे 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 हमारे के अंदर ये जो प्रेयर का जो गुण है वो हमको हर एक जगह, क्योंकि प्रेयर करने से वो हमारी जवाबदारी नहीं रहती। हम वो ज्ञानी पुरुष को हम सौंप देते हैं या सभी देवी देवताओं को हाजिर करते हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बहुत ही कम रह जाती है। इसके लिए प्रेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये धीरे 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 करके हर एक दिन की जितनी भी क्रिया रहती है वो धीरे 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 कर दादा भगवान तो सुबह से उठते थे तो सबसे रात में सो जाते थे तब तक, और रात में भी उनकी विधि चारों ओर हर एक महात्माओं के प्रति, हर एक फॉरेन वालों के प्रति, हर एक जो उनको जो जो मिलते हैं उन सभी लोगों के लिए उनकी प्रेयर दिन भर चालू के चालू ही रहती थी। और ये हमारे को स्टार्ट किया कि भाई एक खाने की प्रेयर आप शुरू करो, धीरे धीरे किए रेगुलर दिन में, तो धीरे 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 करके हमारा भी जीवन
वो दादा भगवान के जैसा ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर, खास हमको याद करके, और ये क्या है कि शुरू शुरू में हमको याद करना पड़ता है, फिर एक बार उनकी धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी ना, तो फिर अपने आप वो विधि चालू ही हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो आपको एनर्जी और जो आपको आनंद आएगा ना, वो प्रेयर बिगर भी आपको आनंद आएगा नहीं, बाद में ऐसा हो जाएगा। और आपका जीवन भी इतना, हमारा जीवन भी इतना सरल हो जाएगा कि आपको कल्पना भी नहीं होगी कि भाई इतनी, कुछ भी आपको अगर चाहिए किसी भी चीज को, अगर आप प्रेयर करोगे ना, तो तुरंत का तुरंत वो क्रिया हो जाएगी। समझ गए ना? तो इतना सारा महत्व है। तो अभी अपने खाने का जो प्रेयर की शुरुआत की है, बरोबर है कि भाई ये खाता है, मैं जुदा हूँ। और आगे जो उन्होंने बताया मोनिका ने कि भाई ये सबका आहार के देवताओं को नमन कर करते, अब तक हमने कभी भी बनाने वाले के अंदर के शुद्धात्मा को नमस्कार नहीं किया था। ये किया था कभी? नहीं। जो आया प्लेट में आया, किसने बनाया वो भी कभी मैंने पूछा नहीं है, बरोबर ना? लेकिन अभी हम उनको भी उपकार करते हैं कि भाई आपके अंदर है शुद्धात्मा, और आपने हमको ये जो खाना परोस के दिया है, तो हम आपके ऋणी है। समझ गए ना? तो क्या हर एक चीज में हम उनका उपकार दृष्टि हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है, और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है प्रेयर करने से, हमारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए हमको खास याद करके हर एक चीज में, जब भी हमने शुरुआत किया हुआ है भाई ये खाने के लिए, तो उसका जो प्रेयर है, तो हमको डेली याद करके उसको करना है। और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ हमको वो टाइम पे थोड़ा जागृत होना पड़ता है कि भाई खाना आ गया तो पहले हम प्रेयर करें, बरोबर है? प्रेयर करने के बाद ही हम धीरे धीरे करके खाएं, और सभी एक्टिविटी धीरे धीरे करके, ये प्रेयर करने के बाद अगर हम शुरू करेंगे ना, तो एक्टिविटी भी इजी हो जाएगी। जो भी हार्ड क्रिया होगी ना, वो भी प्रेयर करने से एकदम इजी होगा, क्योंकि उससे आपकी दर्शन शक्ति खुली होती है प्रेयर करने से। समझ गए ना? तो धीरे धीरे धीरे, और देवी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बनती रहती है, और उनको भी आपकी उनकी कृपा अगर आपके ऊपर बनती रहती है, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती रहेगी। बरोबर है? प्रेयर करने में आपको क्या क्या तकलीफें आती है वो आप बताओ। श्रेया, थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ सुबह को स्कूल जाने से पहले। बरोबर है, थोड़ा फास्ट बोल देती है। बरोबर। हाँ, तो फास्ट तो क्या है, कभी कभी वो टाइमिंग के हिसाब से, इसके लिए हमको क्या करने का, अगर हमको शांति से करने का है, तो हमारे शेड्यूल ऐसा रखने का है कि हम 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा जल्दी उठ के तैयार हो जाए, बरोबर है? ताकि उनका जो प्रेयर का टाइम है वो हम आराम से कर पाए। उसके लिए थोड़ा सॉल्यूशन करने का कि भाई कभी कभी तो चलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज का ये होता है, तो हमको थोड़ा अंदर चेंज करने का है कि भाई 15 मिनट में फिनिश करने के, तो हमारे साथ 15 मिनट का टाइम बिफोर हम आगे से शेड्यूल ऐसा नक्की करें कि भाई हम 15 मिनट हमारे पास बच रहे। कभी कभी होता है तो वो तो बरोबर है कि भाई टाइम का एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा पास हो जाता है, लेकिन अगर रोज होता है, डेली होता है, तो आपको थोड़ा आगे से शेड्यूल उसको फिर से वर्कआउट करके, फिर से थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, तो भाई इसके लिए हमको टाइम कम पड़ता है, क्योंकि कौन कौन से में हम टाइम आगे बढ़ाया, या सुबह से उसका जो जो शेड्यूल आता है उसमें आपको थोड़ा टाइमिंग सेट कर दोगे, तो धीरे धीरे करके वो प्रेयर में भी आपको टाइम मिलता रहेगा। और लेकिन नक्की रखने का है कि प्रेयर हमको बहुत ही उपयोग पूर्वक और शांति से करने की है, ये हमको नक्की रखने का। कभी कभी अगर फास्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमको क्या करने का भाई, दिन में कभी टाइम मिलता है तो वो टाइम पे हमको फिर से एक बार उसका रिवीजन कर लेने का है। लेकिन कभी कभी होता है तो बरोबर है, लेकिन रेगुलर होता है तो आपको थोड़ा उसका शेड्यूल थोड़ा फिर से बनाना पड़ेगा। और दूसरों को क्या तकलीफ आती है? मोनिका, मोनिका, हाँ। आपको तकलीफ आती है? नहीं, मैं बस हूँ, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, मैं वो करती भी नहीं, इसलिए। वेरी गुड। बरोबर दरिया, है। आप प्रेयर करते हैं बिफोर ईटिंग? नहीं। बेटा अभी शुरू करो, ओके? प्रेयर के अंदर बहुत सारी ताकत पड़ी हुई है। वो पहले के जमाने में जब अकबर राजा थे ना, अकबर राजा, यू डन? तो वो अकबर राजा के वो लड़का था, वो बीमार हो गया था, और इतनी सारी बीमारी उनके अंदर आ गई थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सका, एक
ऐसा समय आ गया था। तो वो टाइम पर उन्होंने सब वकील और वैद्य थे, वो टाइम पे तो ऐसे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं थी। तो वैद्य सारे ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अभी हम लोग कुछ कर सकते नहीं है, अगर कोई कर सकता है तो आप भगवान से आप प्रेयर कीजिए, ऐसा है। तो उन्होंने अपना हृदय से प्रार्थना किया, प्रेयर किया। तो धीरे धीरे करके उनके अंदर, वो उनका लड़का था, वो धीरे धीरे करके लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो खड़ा जो मृत्यु के सैये पे खड़ा हुआ था, उनको ये प्रेयर की शक्ति से वो उठ खड़ा हुआ, मतलब तैयार हो गया फिर से। पर उनका जो भी रोग था वो चला गया। प्रेयर में इतनी सारी शक्ति रहती है, तो वो शक्ति का हमको यूज करने का, वो चाबी हमारे पास आ गई है, वो प्रेयर रूपी चाबी। तो वो चाबी हम जितने जितने यूज करेंगे तो उतने उतने सारे के सारे लोग खुलते जाएंगे। कहीं भी जाओ, दादा भगवान तो दिन में उनकी निरंतर ये विधियां चलती रहती हर एक व्यक्ति के प्रति। जो उनको मिलता था उनके लिए सभी कुछ करते थे। तो हमको भी ये हमारे जीवन में ये प्रेयर करने से हमारे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी, और हमको प्रेयर करने में आनंद आना चाहिए। जितना जितना एक्टिविटी में आपको आनंद आएगा ना, उतना उतना आप प्रेयर आराम से कर पाएंगे। अगर ये कंपलसरी है करना है, शुरुआत में ऐसा बरोबर है, लेकिन अगर आप समझेंगे ना तो बहुत ही आपको हेल्प हो जाएगा प्रेयर से। और हम लोग को भी कहीं कहीं हम ऐसा संजोग आता है, तो हम भी ये चाबी यूज करते हैं कि दादा भगवान को हम प्रेयर करते हैं, तो वो अवश्य हमारी मदद के लिए हाजिर है, ऐसा हमको खुद का हमारा पर्सनल अनुभव है। बरोबर है कि कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल काम अगर हमको लगता है और हमने दादा भगवान से प्रेयर किया, तो काम इतनी आसानी से खत्म हो जाता है कि ये हमारे कल्पना के बाहर रहती है। बरोबर है? इतना सारा अनुभव सभी महात्माओं को है कि आपने कभी भी हार्ट में प्रेयर किया तो तुरंत का तुरंत उसका फल मिलना शुरू होता है। ये एक मेरा पर्सनल किस्सा जरा आपको शेयर करता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले मेरे फादर बीमार हो गए थे, और फादर बीमार हो गए थे और सडनली उसको डॉक्टर ने बोला कि उनको दूसरे दिन ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में इतना खर्चा आएगा। और वो टाइम पे हमारी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हमारे पास इतना एक ही रात में इतना पैसा आ जावे, और डॉक्टर बोला ये कल का कल ऑपरेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। फिर हमने सब जगह तपास के किया, लेकिन कहीं से कुछ होता नहीं था। फिर तो एक आपतो पुत्र ने हमको बताया कि एक काम करो, आप दादा से प्रार्थना करो। बरोबर है? तो जैसे ही हमने, पहले तो हम लगभग 2-3 घंटे ऐसे सबको फ़ोन किया, ये है, वो है, ये वो सब चलता रहता था। लेकिन फिर जैसे ही दादा को 10 मिनट में प्रार्थना किया ना, तो तुरंत ही उसका सारे का सारा बंदोबस्त हो गया। मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भई इतना प्रॉब्लम था कि ये था, वो था। तो 2-3 घंटे तो ऐसा लगा था भाई क्या होगा, क्या होगा? लेकिन जैसे ही हमने प्रेयर किया ना, तो तुरंत ही प्रेयर खत्म हुई और आगे से फ़ोन आना चालू हो गए, भई तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया, ऐसा सेटिंग हो गया, डॉक्टर बोला अभी बाद में दोगे तो भी मतलब सारे का संजोग पूरा चेंज हो गया। तो ये प्रेयर में हमारा तो बहुत सारा कितनी-कितनी जगह पे अनुभव है कि भाई दिन में आप कभी भी आप प्रेयर करोगे, तो सारे के सारे संजोग अपने आप वो चेंज होने की ताकत वो प्रेयर के अंदर रखी हुई है। आप जितना यूज़ करो, वो आपका है, ऐसा है। बरोबर है? ओके, तो क्या सुना प्रेयर के बारे में क्या सुना श्रेया? प्रेयर में बहुत शक्ति होती है और प्रेयर से हमको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। आप क्यों नहीं करते हैं मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे प्रेयर से फायदे हुए थे कि प्रेयर करने से जो भी हम अभाव या तिरस्कार करते हैं वो नहीं होगा रिपीटेडली, और साथ ही प्रतिक्रमण जारी रखनी चाहिए अगर वो प्रेयर ना हो तो। Okay, Deepika, you want to add something? उसको दादा भगवान ने ऐसा बताया है, श्रीमद् नागचंद्र जी ने भी ऐसा बताया है, जो क्रिया विधि पूर्वक की जाती है वो परम सिद्धि को प्राप्त करवाती है। जो क्रिया, जो कार्य
विधि पूर्वक किया जाए तो वो कार्य जो हेतु से हम करते हैं वो सिद्ध होता है। एक विधि क्रिया के क्या बोले, जो उसकी रीत भात होती है, प्रोसीजर बोलते हैं ना, वो एक विधि है। और दूसरी विधि है डिवाइन इंटरवेंशन, यानी दिव्य हस्तक्षेप। आप देखो, दिन रात, रात और दिन जो होते हैं वो देवों के कारण होता है, सूर्य नारायण के कारण। सागर में ज्वार भाटा आते हैं चंद्रदेव के कारण, बारिश गिरती है इंद्र महाराज के कारण, इंद्रदेव के, हवा बहती है वरुण देव से। ये जब जहाँ जहाँ हम रहते हैं वो भूमि पर देव है। तो सबसे उत्तम प्रार्थना हमारी ये त्रिमंत्र है। और बाकी जो स्पेसिफिक प्रार्थना आहार के संबंध में, खाने के संबंध में, एग्जाम के संबंध में, कोई भी कार्य के संबंध में, तो वो उससे क्या होता है कि हमारा कार्य सिद्ध होने के लिए, यानी कंप्लीट होने के लिए, ये देवी देवताओं के आशीर्वाद हमें मिल जाते हैं। और सबसे बड़े आशीर्वाद तो हमारे माता पिता का है, वो मैं मानता हूँ कि आप लोग लेते होंगे हर रोज। एक सिर्फ फिर हैप्पी बर्थडे के दिन ही लेते हैं। हाँ, नहीं, हेलो, रोज लेता हूँ। रोज लेते हो? फिर मम्मी को सुबह में फर्स्ट टाइम देखते हो तो जय सच्चिदानंद बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलता हूँ। श्रिया, हाँ, दादा कभी कभार बोलता हूँ। भूल जाते हो कभी कभी। मोनिका कुछ ही तो बोलती ही नहीं, नहीं, मैं धैर्य भी जय बोलता नहीं है। सच्चिदानंद नहीं करती, हर रोज आशीर्वाद लेती हूँ बस। बहुत अच्छा है। तो ये विधि का मतलब ये होता है कि हम कार्य ढंग से करें, वो एक विधि है। दूसरी विधि की देवी देवताओं से आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और त्रिमंत्र बोलने से दादा भगवान के आशीर्वाद हमें मिल जाते हैं। ये बात है। जय सच्चिदानंद। Muted. हेलो बच्चों लोग, ये जय सच्चिदानंद तो पापा मम्मी दादा दादी जो पर मिलते हैं उसको करने का होता है। उसका मीनिंग क्या होता है किसको मालूम है? मोनिका चली गई। श्रेया, जय सच्चिदानंद क्यों बोलने का उसका मीनिंग क्या मालूम है? दक्ष, मोनिका चली गई। ओके, तो अश्विन काका प्लीज उन लोग को बताइए कि जय सच्चिदानंद क्यों बोलने का है, उसका मीनिंग क्या होता है, बोलने से क्या फायदा होता है। ओके। तुम जो जो अपने सब महात्मा होते हैं या कोई भी किसी को भी मिले तो हम उनको जय सच्चिदानंद बोलते हैं। तो जय सच्चिदानंद एक ये व्यवहार नहीं है हमारा, लेकिन ये जय सच्चिदानंद हमको किसकी जय बुलाते हैं? तो के सत, सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है कि सत यानी अविनाशी वस्तु। जो अविनाशी वस्तु है, बरोबर है। अविनाशी वस्तु क्या होती है? तो क्या हमारे अंदर बैठे हुए जो भगवान है वो अविनाशी है, बरोबर है। ये हमारा शरीर है वो विनाशी है, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान बैठे, शुद्धात्मा भगवान है, वो अविनाशी है। सत उसको बस है। चित यानी जो दर्शन ज्ञान है, हमारा दर्शन ज्ञान, उससे बना हुआ चित। जो अविनाशी वस्तु है उसके अंदर जो सत दर्शन ज्ञान है, चित। और उनका स्वभाव कैसा है? तो उनका स्वभाव आनंद है। तो के वो उनको हम नमस्कार करते हैं, जय सच्चिदानंद उनको बोलते हैं, उसकी हम जय जयकार करते हैं। अब तक हमने हमारे सारे जीवन में कभी भी अविनाशी वस्तुओं की जय जयकार नहीं किया है। किसका जय जयकार किया है? तो एक जो जो विनाशी चीज है उसका हमने जय जयकार
किया है, लेकिन अविनाशी चीज का कभी जय जयकार किया नहीं। और जय सच्चिदानंद किसका जय जयकार है? तो हमारे अंदर जो सत मतलब अविनाशी वस्तु है, कायम की चीज है, और दर्शन ज्ञान, और उसका स्वभाव कैसा है? तो आनंद स्वभाव है। तो उसका हम जय जयकार करते हैं। इसके लिए हमको जय सच्चिदानंद। अभी आपको शायद ये मंत्र का जय सच्चिदानंद शब्द का अगर अर्थ अगर मालूम भी नहीं पड़े, तो भी आप बोलोगे ना, तो भी वो आपके अंदर क्रियाकारी करता ही रहता ही रहेगा। मतलब आपको मालूम पड़े सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, तो दादा भगवान ने बोला है, दादा भगवान भी जो महात्मा मिलते थे उनको जय सच्चिदानंद कहते थे। तो हमको भी क्या करने का है अभी, कि जब तक मालूम नहीं पड़ता है तब तक दादा ने बोला है तो हमको बोलने का है, वही चीज हमको रखने की है। बरोबर है? तो जो जो आपके घर में मिलते हैं, चाहे जितनी बार भी मिले, दिन में 3 बार मिले तो 3 बार जय सच्चिदानंद करने का है, 1 बार मिले तो 1 बार जय सच्चिदानंद करने का है। वो हमको उनके लिए नहीं करने का है, हमारे लिए करने का है। किसके लिए करने का है? हमारे लिए करने का है। और आप जितनी जितनी बार जय सच्चिदानंद करते रहोगे, तो आपके अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है, वो धीरे 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 करके उनका प्रकाश, उनका लाइट आपको मिलता रहेगा। बरोबर है? तो आपके घर के अंदर जो भी सभ्य है, अपने छोटे बहन है, या मम्मी है, पापा है, दादा दादी है, या फ्रेंड सर्कल है, सभी के अंदर जो हमारा व्यवहार है वो कैसे रखने का है? जो कि जय सच्चिदानंद करके ही स्टार्ट करने का है। बरोबर? जय सच्चिदानंद। ओके, मालूम पड़ गया श्रेया? मम्मी मम्मी को बोलना कि ये प्रैक्टिस करने का है घर में। अरे मम्मी को बोलना, दक्ष मम्मी को बोलना प्रैक्टिस करने का है कि जय सच्चिदानंद।